Hi everyone, welcome to Shine Education. So today we are going to start with the class 10 history chapter, The Rise of Nationalism in Europe. In this chapter I am going to discuss with you some important terms. Now a question will come to your mind, अब हम important terms करने के क्या benefit है? So number one benefit is that important terms को clear करके आपको जब chapter reading करेंगे तो chapter की understanding करने में ये help करेंगे. Point number two, यू नो कि आपको इस बार एग्जाम में एमसीक्यूज आने हैं, तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उसमें बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं ये ही एमसीक्यूज बन के आपको एग्जाम में आ सकती हैं. तो नो डाउट एमसीक्यूज की एक सेपरेट वीडियो अपलोड होगी चैनल पे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म, नेशनलिज्म. सो इट इज अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, राइट? It's an ideology which emphasizes the faithfulness, devotion or allegiance to a nation or nation state. So nationalism एक ऐसी feeling है, pride की feeling, respect की feeling है हमारी country के लिए, जिसको हम देशभक्ति बोलते हैं. So ये idea जो है वो किस चीज पे importance डालता है? It emphasizes on the faithfulness, devotion or allegiance to a nation, कि हम अपने country से कितना प्यार करते हैं, कितने honest हैं, हमारी inner feelings कैसी हैं हमारे country के लिए. So this is all about the nationalism. So आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है? A feeling of pride and respect for the country. नीचे आपको ऑप्शंस गिवन होंगी. It's a nationalism, it's a nation state and other options. If you will know the meaning, then definitely you will very easily get the correct answer. Now the next is nation state. So a state in which majority of its citizens and rulers develop a sense of common identity and share history. So एक ऐसी state जिसमें majority मतलब large number of people जो हैं उनमें और रूलर्स में कुछ कॉमन आइडेंटिटी होगी, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड द नेशन स्टेट. मॉडर्न स्टेट, अ स्टेट इन विच सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड पावर ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन. सो मॉडर्न स्टेट एक ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे जिसमें जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, जो रूल कर रही है एक स्पेसिफिक टेरिटरी पे लोगों के ऊपर, दैट पावर इज हैविंग द पावर टू टेक इट्स ओन डिसीजन. सो इन दैट केस द स्टेट इज नोन एज मॉडर्न स्टेट. नेक्स्ट इज एलिगरी. Allegory क्या है? It is an abstract idea to express, which is expressed through a person or a thing. अब abstract idea है तो it means कि we can't see that idea, like freedom, देख नहीं सकते हैं, touch नहीं कर सकते हैं, but we can feel it, right? Beauty, greediness. So here allegory is an abstract idea जिसको हम express किसके through करते हैं? किसी person या किसी भी thing के through. Now an allegorical story has two meanings. One is the literal meaning and the other one is symbolic meaning. So next term is absolutism. So it refers to a system of rule that has no restraints on the power exercised. एक ऐसा सिस्टम है रूल करने का जिसमें रूलर के पास जो पावर है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता है. So next is French Revolution. An uprising in the France against the monarchy from 1789 to 1799 resulted in the establishment of France as a republic. So French Revolution, फ्रांस में जब रिवोल्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट हुआ था? मोनार्की रूल के अगेंस्ट, राइट? किंग के अगेंस्ट. कब से कब तक हुआ था? फ्रॉम 1789 टू 1799. और जिसका रिजल्ट क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि वहां पे फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक डिक्लेयर हो गई थी, लाइक वहां पे एक डेमोक्रेसी सेटअप करने की शुरुआत हो गई थी. सो नेक्स्ट इज फेमिनिज्म. So it is awareness of women's right and interest which is based on political, economic and social equality of genders. So feminism हम उस situation को कहते हैं, हम तब बोलते हैं feminism कि that is feminism because जहाँ पे women के equal rights की बात की जाती है, women के interest की बात की जाती है, and there is social equality between the men and women. Next is conservatism. So it is a political and social philosophy promoting traditional social institutions in the context of culture and civilization. So conservatism क्या है? It's a political and social philosophy है जो क्या प्रमोट करती है? ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस को जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में? कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में. लाइक हम जैसे बोलते हैं कि दैट पर्सन इज हैविंग वेरी कंजर्वेटिज्म अप्रोच, मतलब बहुत पुरानी सोच का रखता है पर्सन वो, और वो इसको चेंज नहीं करना चाहता. ही इज हैप्पी विद दैट ट्रेडिशनल culture and thinking. So next is suffrage. Suffrage is right to vote, right, or voting right. Next is ethnic, a common racial, tribal or cultural origin or background that a community identifies with or claims. So ethnic means एक common जो है कि racial की बात करें, tribal की बात करें या cultural की बात करें, एक community में
जैसे हम एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं उसके कुछ कॉमन फीचर्स के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड एथनिक. नेक्स्ट इज यूटोपियन. So it is a vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं जो इतनी आइडियल है, इतनी अच्छी है, बट एक्चुअल में ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती. नेक्स्ट वन इज plebiscite. It's a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. So plebiscite क्या है कि एक डायरेक्ट वोट है जिसके थ्रू जितने भी लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया के वो किसी भी प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आइडियोलॉजी. इट इज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन. वेरी सिंपल कि एक पर्टिकुलर या किसी भी सोशल विजन के बारे में जो एक सिस्टम ऑफ आइडियाज है, group of ideas hai, that is called the ideology. Next is Frankfurt Parliament. So it comprises professionals, businessmen, artisans in the city of Frankfurt. So Frankfurt Parliament की बात हम कर रहे हैं तो Frankfurt city में जितने भी professionals थे, businessmen थे या artisans थे वो सभी इसमें आते हैं. And what they did, they decided to vote for an all German National Assembly. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक all German National Assembly को वोट करेंगे. They drafted a constitution for a German nation headed by the monarchy subject to parliament. और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. किसके लिए किया? जर्मन नेशन, जर्मनी के लिए किया. और जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को लीड किसने किया? मोनार्की ने, वहां के रूलर ने, विद सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट. Next is Zollverein. It's a custom union formed in 1834. So Zollverein क्या है? एक कस्टम यूनियन है. कब बनी थी? 1834 में बनी थी. किसके इनिशिएटिव के कारण बनी थी? प्रूशिया के. It abolished. अब इसने क्या किया? It abolished the tariff barriers. So tariff barriers means trade barriers जो थे, जो ट्रेड करने में रुकावटें आ रही थी, उसको abolish, उसको खत्म किया. Reduce the number of currencies from over 30 to 2. और उस टाइम पे जब वन रीजन से अदर रीजन में जाते तो करेंसीज को भी चेंज करना पड़ता था. सो 30 करेंसीज से करेंसीज को जो नंबर था वो रिड्यूस कम कर दिया गया था टू 2 पे. 2 करेंसीज रह गई थी, पहले 30 करेंसीज थी. राइट. सो दिस इज अ Zollverein एंड इट इज फॉर्म्ड इन 1834. नेक्स्ट इज यंग इटली. अब ये यंग इटली क्या है? इट इज अ सीक्रेट सोसाइटी which was formed by the Giuseppe Mazzini for the unification of Italy. यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसको मैजिनी ने फॉर्म किया था. क्यों फॉर्म किया था? जब इटली को यूनिफाइड करना था उस टाइम पे. एक्ट ऑफ यूनियन. Act of Union, this is the act between England and Scotland which resulted in formation of United Kingdom of Great Britain. So एक एक्ट है, एग्रीमेंट है इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? फॉर्मेशन हुई यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और इसका क्या इफेक्ट आया कि इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. तो जो इंग्लैंड था उसने स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. सो ये वो ट्रीटी है, वो एग्रीमेंट है विच इज पास्ड इन 1832. और इस ट्रीटी से क्या रिकॉग्नाइज हुआ, क्या रिजल्ट निकला? इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. इससे ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना जाने लगा. So Greek War of Independence, it is the event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe in 1830 to 1848. So Greek War of Independence क्या थी? एक ऐसी इवेंट थी जिसमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो लोगों की थी, एजुकेटेड इलाइट, एजुकेटेड पीपल जो थे यूरोप के, बिटवीन 1830 टू 1848, वो सभी जब उनकी नेशनलिस्ट फीलिंग्स अराउज होने लग गई तो उसको कहा जाने लगा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Jacobin Club, a political club that come into existence in the aftermath of the French Revolution. So French Revolution के बाद जो political club सामने आया वो था Jacobin Club. Next is Treaty of Vienna in 1815. Representatives of European powers. कौन सी European powers थी? Britain, Russia, Prussia and Austria. Collectively defeated Napoleon. उन्होंने इकट्ठे मिलकर क्या किया? 1815 में नेपोलियन को हरा दिया. फिर वो मिले वियना में to draw up a settlement for Europe. राइट. और इन सब के पीछे आपस में एग्रीमेंट बनाने का, मिलने का वियना के पीछे एक क्या एग्रीमेंट था उनका? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स. तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस लेके आया है वहां पे यूरोप में, उन सबको हटा दिया जाए और जो जैसे पहले चल रहा था वो वैसे ही कंटिन्यू किया जाए. सो दिस वॉज ट्रीटी ऑफ वियना. बेसिकली आपको इसमें लर्न करना है 1815 ये कब हुई थी और इसमें कौन से 4 कंट्रीज थे? ब्रिटेन, रशिया,
रशिया एंड ऑस्ट्रिया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर।